اپنی بات کرتی ہوں، میں ویڈیو ایڈیٹنگ جانتی ہوں، میں ہر طرح کی تصویریں ایڈٹ کر سکتی ہوں، بگاڑ بھی سکتی ہوں، ان کے جپس بھی بنا سکتی ہوں، مطلب سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں خادم حسین جیسے شیطان کی بھی تصویر کو میں بگاڑوں۔ آپ نے پائی ہے کہ آپ خادم حسین رضوی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کے بڑے بزرگوں نے تو جس کو کہا ذریات البقایا کہہ دیا نا ان کو، تو آپ نے ان سے تربیت پائی تھی، کیا بتائیں گی؟ کیا اگر تو آپ نے احمدیت سے ہی یہ تربیت پائی ہے جو کہ بقول آپ کے، تو آپ غلط ہیں، یہاں ثابت ہو جاتی ہیں کہ علاوہ بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کو ایڈیٹنگ آتی ہے اور وہ نہیں کرتے، اور ان کا کوئی تعلق اس دین ایمان سے نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کا صرف آپ اکیلی ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا ہے آپ ہی ایک اعلیٰ و عرفہ اخلاق کے مالک ہیں؟ اور ایڈیٹنگ کرنا یا نہ کرنا اخلاق میں کہاں شامل ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ادھر کتنے مربیان ہیں سوشل میڈیا پہ جنہوں نے 50 جو ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ایک اکاؤنٹ سے آتے ہیں بڑے مربی بن کے تبلیغ کرتے ہیں، دوسرے سے آ کے دہریہ بن کے گالیاں دیتے ہیں، تیسرے سے آ کے ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو ہے، میں گواہ ہوں ان چیزوں کی، کہیں تو اس گروپ میں کئی گواہ موجود ہیں جو ان لوگوں کے جو اس قسم کی حرکتیں دیکھ چکے ہیں پہلے، انہی مربیوں کی ان کے اکاؤنٹ سے واقف ہیں۔ اور ہاں جی، اور بہت سے جو خدام یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ، ان میں سے کس کے کتنے اکاؤنٹس ہیں یہ بھی ہے، باقاعدہ ایک مہم چلی تھی جماعت کی طرف سے کہ آپ نے کسی مربی کی کوئی پوسٹ آئے گی، اسی خدام نے اپنے 50 اکاؤنٹ سے جا کے اس پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کرنا ہے۔ تو کیا آپ لوگ ایسے کام کر سکتے ہیں لیکن آپ صرف ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے؟ تو فرق کیا ہوا اس میں اور ایڈیٹنگ میں؟ استعمال ہی کرنا ہے نا سوشل میڈیا کا، جس مرضی سینس میں کریں۔ آپ جو کریں وہ صحیح ہے، دوسرا کرے تو غلط ہے۔ یہ میزان یا یہ والا ترازو آپ کو تھمایا کس نے ہے؟ کیا آپ کا ترازو صرف اپنی طرف ہی جھکتا ہے کہ آپ جو کریں وہ صحیح ہے، دوسرا جو بھی کرے غلط ہے؟ ہم بات بھی کریں، سوال بھی کریں تو ہمارے اعتراضات غلط ہے، کیوں بھائی؟ ہمیں کیوں حق نہیں ہے کہ ہم اعتراض کریں؟ ہمیں پورا حق حاصل ہے۔ اور یہ آپ نہیں، آپ کون ہوتی ہیں کہ ان چیزوں پہ یہ جو ہے نافذ کرنے والی ہیں اپنی جو یہ جو ججمنٹ کر رہی ہیں یہاں بیٹھی؟ آپ کو اس فیصلے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ کے پاس سوالات کے جواب ہیں تو دیجئے، اگر نہیں ہے تو یہ بھاشن تو مت دیں۔ ہاں جی، اگر یہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا نا کہ گروپوں میں ہیں اس طرح کے بندے بھی۔ اب دیکھیں، یہ پتہ نہیں یہاں پہ صرف ہوتے ہیں جاسوسی کے لیے یا اپنے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے یہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں گروپوں میں۔ اب مجھے تو سوچنا پڑے گا نا اس بارے میں، اور مجھے پھر آتا ہے غصہ کہ یہ سکوت انہوں نے کس وجہ سے اختیار کیا ہوا ہے۔ ایک تو اپنے خلیفہ وقت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں صاف اور حقیقی طور پہ کہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے میں اب سخت الفاظ استعمال کرتے کرتے رک گیا ہوں، ایسے مطلب بندروں اور دوسرا لفظ جو حدیث والی آپ الفاظ لے لیں، ایسے جب علماء کو اپنی فرقہ کے علماء کو مرزا مسرور احمد نے منع کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں بحثیں کرنی، تو یہ کیوں پھر پروگرام کرتے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر؟ اور یہاں پہ جب بندے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ سر میں احمدی ہوں اور میرے بانی جماعت احمدیہ کی تعلیمات اور ان کے دعووں سے متعلق بہت سے سوالات ہیں، اور پلیز آئیں میرے ایک سوال سے ہی شروعات کر لیں، میری رہنمائی کریں، لیکن انہوں نے مطلب کہہ لیں کہ لاک کر دیے ہوئے ہیں، اپنے ہونٹ سی لیے ہوئے ہیں، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ پھر یوٹیوب پہ ان کے اپنے ہی ایک دو بندے ہوتے ہوں گے، کسی مطلب کہہ لیں کہ ہلکے سے سادے سے انسان سے یہ گفتگو کر لیتے ہوں گے اسے فون پہ بلا کے، کسی مطلب کم علم والے شخص کو، تو اس سے کر کے بعد پھر یہ اپنا خود ہی گمان کر لیتے ہوں گے آپس میں کہ او ہو آج تو ہم نے مسیح کے پیغام کو سب سے زرخیز زمین میں بو دیا اور ایسا تناور شخص درخت پیدا کر دیا ہوا ہے کہ جو 7ویں آسمان تک جس کی آج کونپلیں پہنچ گئی ہیں، تو میدان فتح کر لیے ہوئے ہیں نا ہم نے تبلیغ کے۔ یہ ایسی فیلنگز لے جاتے ہیں دل میں ہی، اور یہ سمجھ لیتے ہوں گے کہ او ہو ہم نے تو سارے ذمے اتار دیے نا، پورے کر دیے ہیں اپنی ذمہ داریاں۔ بھائی میرے پاس موجود ہیں ایسے دعوت اللہ کے لوگ جنہوں نے مجھے جو بڑے زمانے تک
बाकायदा दाइयाने अल्लाह रहे हैं। रब्बा में ग्रुप्स बने हुए थे बड़े लोगों के, बाहर भी दूसरे मुल्कों में भी। और उन्होंने बाद में मुझे जब मेरे साथ गुफ्तगू होती रही तो मुझे उन्होंने खुल के ये बातें बताई जिन चीज़ों ने उनको इन चीज़ों से बददिल किया। और वो उनका बड़ा साफ कहना था कि हमारे पास हमें बाकायदा ग्रुप हमें ये किया जाता था कि एक किस तरह किसी बंदे को हमने अगर पकड़ लिया है ना कि ये बंदा है, इससे हमने बहस कर रही है, तो पहले हम पकड़ते थे कोई जिस तरह जो भी मौलवी है या कोई भी समझ लें कि जो हमारे अकीदे से जो कर रहा है, इतराज़ कर रहा है, उसको पकड़ते थे ग्रुप की सूरत में। और उसको पहले तो हम हदीसें शदीसें जितनी सुना की कोशिश करते थे, कुरानी आयात की मारने की जितनी हमें आती होती है, जितनी छलांगे हम मार सकते हैं। तो जब वो हमारी उसके अंदर नहीं आता, दाम में नहीं फंसता, तो फिर हमारे पास दूसरा हरबा होता था कि हम अपने ही दूसरे अकाउंट्स हमने बनाए होते थे जो उन्हीं ने, तो उसमें से जाके हम दहरिया बन के उनको गालियां देने देते थे। मतलब ग्रुप की शक्ल में आप मुनाजरा कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, और किसी को क्या पता उस ग्रुप के अंदर कौन कौन है। अब आप दूसरे किसी अकाउंट से आए और आके मुझे गालियां देने लग जाए यहाँ पे टका के, और उनको ये पोस्ट करें कि आप अल्लाह को भी नहीं मानते, आप हदीस को भी नहीं मानते, आप रसूल को भी नहीं मानते, आप कुरान को भी नहीं मानते, और आप मतलब ऐसा पोस्ट करके टका के गालियां भी दें, अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली और लन तन भी कर ली, अपना गुस्सा भी रिलीज कर लिया, अगले को सुना भी दी, तपा भी दिया, क्योंकि हमारे पास दलील नहीं रही ना। अब तो हमने दूसरा हरबा दैरिया बन के हमने अपना गुस्सा निकालना है, और उसके बाद वापस चले गए दूसरे अपने उसमें आईडी पे। वहां जाके फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी शुरू कर दी, वहां जाके कुरानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी शुरू कर दी, वहां जाके कुरानी आयतों के विर्द करने शुरू कर दिए और दैरिया को गालियां निकाल दी। देखा दैरिया आ जाते हैं ना बीच में, जो हमारा प्रोग्राम खराब करते हैं, हमारा हम ठीक ठाक मुनाजरा करते हैं, हम तो मुसलमान भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे से मिल बैठेंगे कि दैरिये आके माहौल खराब करते हैं। और होते खुद ही दैरिया थे अंदर, और कहते थे कि ये चीजें हमने देख देख के, बस दोस्त बताते हैं कि हम लोग तंग आ गए थे देखे कि ये हम कर क्या रहे हैं। आइडियां बदल बदल के दैरिये भी बन रहे हैं, आइडियां बदल बदल के मुसलमान बन रहे हैं, सिर्फ एक बंदा पकड़ने के लिए। जब ये अखलाकियात के मेयार हों और यहाँ भाषण आपको मिले इतने बड़े बड़े कि हम जी वो जो एडिटिंग नहीं करते, हम जी ये नहीं करते, एडिटिंग करना जैसे बहुत बड़ी बात है। ये मेरे पास मौजूद है लोग, मतलब जिन्होंने जो इन वजूहात से जिन्होंने छोड़ी हैं चीज़ें, ये वो कहते हैं हम शदीद बददिल होके आए हैं कि ये हमने हरकतें देखी हैं और बड़े नंबर मरबियों के हाथ देखी हैं उनके ग्रुप्स में। और जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, डैरिये बेचारे हैं वही बदनाम। आप सोचें, अंदर से खुद ही वही कुछ है, खुद ही बनते हैं और खुद ही उनको बदनाम करते हैं और लोगों को ये पोस्ट करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े बद अखलाक हैं, हालांकि उन लोगों में अखलाक इनसे कहीं ज्यादा हैं। ये है असल में मुनाफिकीन। मुनाफिकीन जो है वो ज्यादा खतरनाक है, ये बिच्छुओं की तरह डसते हैं अंदर से। बाकी तो जो दहरिया हैं वो तो 1000 दर्जे इनसे बेहतर हैं, क्योंकि जो है सो है। इनकार करना बेहतर है इससे कि आप दरमियान में झूलते रहें। इसलिए ये वो लोग हैं झूलने वाले। इनके साथ देखे हुए हैं ना, आपने करके अच्छी तरह मनाजरे भी करके देखे हैं, इनके साथ जो करते रहे हैं उनको भी जानती हूँ, बड़पथेरों को। तो इसलिए ये उन्हीं में से एक हैं। ये यहाँ पे खामोश होके बैठे होंगे, लेकिन जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर जाके इन्होंने बड़े मतलब जहाद की अलम्बा जो है वो बुलंद करेंगे, और अंदर से ये सारे यही होते हैं, ये अंदर से बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये इनके पुराने मेरे पास काफ़ी लोग मौजूद हैं, इन चीज़ों के गवाह हैं, जो जो ये चीज़ें जो जानते हैं उन लोगों को। इनके मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके पास बकायदा खुदाम, जिनकी ड्यूटियां ही ये थी कि उनको बकायदा 50 सारा दिन बैठ के फारिग बैठे हुए हैं, उन्होंने ईमेल आईडीज बनानी है कोई 50 मुख्तलिफ नामों से, और उनका ऐसे ही इस्तेमाल करना है। और ये फिर ग्रोहों की सूरत में करते हैं दूसरों को। जब जिस तरह आपने कोई काम किया है, समझे आपकी कोई बात या पोस्ट उनको पसंद नहीं आई, तो वो फिर ना ग्रुप की सूरत में एक ही आई, जो बंदे ने 50 आईडीज जो बनाई हुई हैं, वो अपनी 50 आईडी से जो है ना वो उसको रिपोर्ट करेगा। अब आपको पता है रिपोर्टिंग जितनी ज्यादा होगी वो आईडी अगले की बंदे की ब्लॉक हो जाएगी, और फिर कहते हैं वाह 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 हमने उस पेज को ब्लॉक कर दिया। असल में ये काम चलते हैं, इन्होंने ये तरीके इख्तियार किए हैं ग्रुपों की सूरत में जब काम करते हैं, या लोगों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो इनको ये
समझते हैं ये बहुत बाइखलाक लोग है ना, तो लेकिन एडिटिंग करने को जो है वो बद इखलाकी है। लेकिन ये काम तमाम हलाल है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अली भाई ने ऊपर पोस्ट दिखाई है ना कि ये लिजर्ड के अंडे हलाल हैं, इसी तरह ये जो है एडिटिंग हराम है और ये जो आईडीज बनानी हलाल है। तो इसलिए ये आप समझ जाएं, ये वही फार्मूला है। हाँ जी फाफ जी, मेरे कोई कह लें कि मतलब ज़्यादा मनाजरे तो नहीं हुए ग्रुप्स वगैरह में या सोशल मीडिया पे, लेकिन जो हल्का अहबाब में मेरे वाकफ़कार मुरब्बी दोस्त थे ना, मेरे सिलसिला से इख्तलाफात के आगाज़ में ही ऐसे लोगों से गुफ्तगू हुई, तो उनके रवैये भी मुझे देखने में मिले, एक्सपीरियंस हुआ। और अभी जो आपने बातें शेयर की, जो मुझे अब सोशल मीडिया पे आके तजर्बात हुए ना बाज़ और ग्रुप्स में भी, जब मैं अहमदियों से बहस किसी अहमदी से कर रहा होता हूँ, बाज़ दफ़ा मैंने कुछ 4 5 6 दफ़ा आप कह लें, तकरीबन 5 6 बार मेरे साथ ये हो चुका होगा ना मामला जो आपने बताया, कि एक अहमदी जो मुझसे नहीं बात कर पा रहा ना, उसे जवाब नहीं आ रहा, मतलब सही टू दी पॉइंट उसे बात करनी नहीं जब मुश्किल हो जाती है बंदे को बहुत, तो सेम यही सिचुएशन हुई है। फौरन कोई और नंबर आया ग्रुप में, तो वो जी दूसरे मजहबों पे एतराज करने लग गया, इधर उधर ये वो, दूसरे अंबिया पे, तो उनको बुरा भला, तो अहदीस लगा दी, ये वो, मतलब बंदे को अगले को कंफ्यूज करने की कोशिश ना, कि ये किसी तरह नई बहस छेड़ ले और इस बंदे की जान छोड़ दे। तो वो कह ले मुझे, लेकिन अल्लाह ताला का फजल ही है कि मैं समझ जाता हूँ ना, मुझे पता चल गया, और मैं तो ग्रुपों में शोर डाल देता होता हूँ ना उसी टाइम के, ये देखो ये बंदा कादियानी है। और मैंने ऐसे कई बंदों को पॉइंट आउट भी कर दिया हुआ है ना, मतलब कह लें कि अपनी सोच को ही दलाल को ही दलील बना के, तो ऐसी बातें मतलब मिल जाती हैं उसी बंदे उसी नंबर के करैक्टर से जो इन हो गया होता है किसी भी गुफ्तगू के अंदर। तो मैंने तो ऐसे 2 3 मुल्हदों से मेरी वाकफियत हो चुकी है, मतलब जो नकली बन के आते हैं, होते मुबल्लग ही हैं, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिल रहा होता, या उनके अपने पार्टनर की जान छुड़वाने के लिए ना वो इस तरह के हरबे ये आजमाते हैं। तो फिर एक तो कह लें मेरे इल्मी इख्तलाफात थे ना इन लोगों से चल रहे, उनको डिस्कस करने के लिए जब एक बंदा आता है और उसे फिर इस तरह की कह लें फेसेस करने पड़ते हैं इस तरह के बंदे, और उन्हें जब ये रवैया मिलता है मेरे जैसे बंदे को, वो बंदा फिर और बदजन होता है, और उसकी जो इख्तलाफात है होते हैं वो नफरत की शक्ल भी इख्तियार करने लग जाते हैं ना। तो मैं बड़ी दफ़ा फिर अहमदियों से मैंने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हुए हैं ऐसी हरकतों के बावजूद, इनकी ये हरकतें देखने के बाद, कि आप क्यों इस तरह के काम करते हो ना, मतलब बदनामी का बायस बन रहे हो अपने फ़िरके के लिए और अपने काबर के लिए। तो बिल्कुल हाँ जी, ये तो मैं तईद करूँगा आपकी बात की कि मेरा खुद ये एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन बात बड़ी मतलब ये मुझे दुख पहुंचा रही है कि अब ये सोशल मीडिया पे बंदे जश्न मनाएं अपनी फतह के, अपने मुनाजरे जीतने के, लेकिन यहाँ इन ये किसी बंदे को जवाब ना दें जो दुहाई दे रहा हो कि मैं रहनुमाई का तालब हूँ ना, मुझे आके प्लीज कुछ मेरा मसला सुनो और उसे कोई हल निकालो उसका, और ये मुंह छुपाते फिरे। तो अफसोस होता है बहुत ज्यादा, मतलब दुख और अफसोस। यकीन करें ये मुरब्बी मुअल्लम जब जमात से या उधर मरकज से पास आउट होके फील्ड में आते हैं, तो फील्ड के लोग उन मजलिसों के मजालस के जहाँ पे इनकी ड्यूटियाँ होती हैं, तैनात होते हैं, वो लोग इनको मतलब पाँव धो के पीने वाला ही कह लें कि एक्ट कर रहे होते हैं। इतनी अतात, इतनी तईद, इतना एहतराम, तो ये मुरब्बियान जो हैं ये एहतराम में ही अंधे हो गए हुए हैं ना। उसी एहतराम उसी इज्जत ने जो मानने वालों अकीदतमंदों की तरफ से हम लोग ही कह लें इन्हें देते होते थे कि ओ हो ये तो मुरब्बी साहब हैं, 7 साल पढ़ के आए हुए हैं जामिया से, पूरी दुनिया के इल्म चटा दिए हुए हैं, तो हम तो समझते थे ये जमात के मतलब वो सिपा सलार है ना बहुत बड़े, तो मौलवी या कोई और गैरस जमात तो आम अहमदी से बात नहीं कर सकता ना, एक अहमदियों के बच्चे से हमारा ये जहन होता था। ये मुरब्बी तो पता नहीं कौन से पहाड़ हैं, कौन सी हस्तियां हैं। तो वो जो आम लेवल के कह लें कि मुरब्बियान हैं, उनसे तो जो गुफ्तगू हुई उसका तो मुझे पता चल गया ना उनके इल्मी लेवल का, कि इन्हें तो मिर्ज़ा साहब की 25 किताबों के नाम भी ज़बानी याद नहीं है।
तो लेकिन अब जो बचे खुचे हैं, ये जो बड़े नाम हैं, अब जो मरब्बियान से ऊपर के दर्जे पे खुद को तसव्वुर करने लग गए हैं लोग, तो वो तो अब ये जो यूरोपियन मरब्बीज हैं, ये तो खुद को कहते हैं कि हमें इन्हें मरब्बी साहब कहें तो ये आप आंखें टेढ़ी करते हैं ना, मतलब गुस्सा माइंड करते हैं। इनका दिल करता है हमें इमाम साहब कहें। इधर इमाम साहब का ट्रेंड चला दिया हुआ है मलंगों ने ना, मरब्बियों को इमाम का दर्जा दे दिया हुआ है, तो वो इमाम साहब सुनना चाहते हैं अपने लिए। तो ये अब कह लें ये वही उलमा है ना जिनका हम मसदाक अपनी अकीदत के दिनों में दूसरे फिरकों के उलमा को ठहराते थे। अगर यकीन करें, मैं हर किस्म के तसब से बालातर हो गई ये सारी राय और तजिया और ये सारी बातें करता हूँ। ये मुझे अपने फिरका के ही ये उलमा फिर सुअर और बंदर ही लगते हैं। जब इनसे मतलब कह लें कि कोई मसला बयान किया जाए, कोई रहनुमाई लेने के लिए आगे आए, तो ये सुअर और बंदर की तरह एक्टिंग करते हैं, मतलब या फिर चूहों की तरह अगले को बिल्ली समझ के साहिल को तो ये छुप जाते हैं किसी बिल में जाके। मेरे पास बेशुमार नौजवान तबका है रब्वा से भी, ये जितने नए मरब्बिया बने हैं, और यकीन माने बाज ऐसे हैं जो मुझे इनबॉक्स में कहते हैं कि बाजी हम एथियस्ट हैं, लेकिन हम इकरार नहीं कर सकते, हमें जाके तरावियाँ पढ़ानी है, हमें जाके ये करना है, हमें जाके वो करना है। हम मरब्बी हैं, हम जब पैदा हमें वाकफी नौ में थे, हमें हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे वालिदैन ने मरब्बी बनाने के लिए मखसूस कर दिया था। हमसे तो पूछा ही नहीं गया कि हमने क्या करना है। जब हमें बना दिया, होश आई, हमें लगा हमारा ये है ही नहीं। लेकिन अब हम क्या बताएं, किसको बताएं, कोई सुनता है? हमें करना पड़ता है, फॉलो करना है। आप ये भी सोचें जरा, ये वो लोग मौजूद हैं, सिर्फ इनमें ही नहीं है,